Today, I will discuss with you causes of French Revolution. And in the previous lecture, I have discussed with you different causes like political causes were there, economic causes were there, and social causes I have discussed with you. In political causes, you have to explain about the political environment of France, and in the social causes, you have to explain about the society, that is estate system, means first estate, second estate, and third estate system was there. And in the social causes, or sorry, in the economic causes, you have to explain about the economic condition. Like the government was under heavy debt, 2 million livre was there, and at that time, the treasury of king was empty, and so that's why he needed finance, and that's why he started increasing taxes. So now I will discuss today fourth cause of French Revolution, that is role of philosophers. Role of philosophers or contribution of philosophers. In the French Revolution, many different, you can say, people, they contributed in the revolution by reading the books. And by reading the books, new ideas, new revolutionary ideas came into their mind, and they started opposing the government. How these ideas came into the mind of these people? By reading the books written by many philosophers. In this point, you have to explain the name of philosophers and their books. There were different philosophers. First of all, John Locke. He wrote two treatises of government. In this book, he opposed theory of divine right. Means divine right का मतलब क्या होता है? At that time, during 18th century, the word of king was law. यानी कि king का कहा गया हर एक word law होता है. And that theory was called theory of divine right, ताकि लोगों को ये डराया जाए कि वो king के against ना आ जाए, क्योंकि अगर वो king के against जाते हैं तो वो God के against. And in this book, John Locke, he wrote about the negative aspects of theory of divine right. इसका मतलब है कि उन्होंने इस बुक में, पूरी बुक में उन्होंने किंग के डिवाइन राइट्स को अपोज किया. और जब लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा तो उनके माइंड में रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए, और उन्होंने ये सीखा कि किंग के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे जाते हैं अगर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट पॉलिसीज नहीं बनाती है या उनकी फेवर में पॉलिसीज नहीं बनाती. ठीक है. सो दिस फिलोसफर जॉन लॉक, ही वाज वेरी पॉपुलर, and by reading those books, many people, they brought revolution in the society. Next is Rousseau. Rousseau wrote social contract. What is the meaning of contract? Contract like बच्चे कई बार क्या होता है, एक लैंड लॉर्ड जो है वो जब भी रेंट पे किसी को या शॉप देते हैं या घर देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, 2 ईयर्स के लिए भी हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो जो रेंट पे जो पर्सन लेता है उसको खाली करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे रूसो के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो होती है, दैट इज द, यू कैन से, कॉन्ट्रैक्ट between people and leaders. ठीक है. Again I am repeating, according to Rousseau, government is the contract between people and leaders. इसका मतलब क्या है? In the elections, people they elect the representatives, people they elect their leaders. Now the duty of leader is to give the best for the public, यानी कि वो पब्लिक के लिए बेस्ट करें और आने वाले 5 years के लिए उनको सेटिस्फाई करें. तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है? जब भी कोई सिटीजन, जब भी कोई वोटर इलेक्शन में किसी भी लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके जिताता है तो इट मींस दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि 5 साल के लिए अब वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए. तो रूसो के अकॉर्डिंग भी कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए इसको चेंज किया जा सके. अकॉर्डिंग टू रूसो, इन दिस बुक ही रोट दैट गवर्नमेंट शुड बी चेंज ड्यूरिंग रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स ये 5 years भी हो सकते हैं, 6 years भी हो सकते हैं. लाइक इन आवर कंट्री गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. हमारी कंट्री में इलेक्शन 5 years के बाद होते हैं. इसका मतलब क्या है कि लोग अपने लीडर्स को 5 साल के लिए चुनते हैं
that is a kind of bond, that is a kind of contract between people and leaders. एंड बहुत से लोगों ने इनकी बुक को पढ़ के, रूसो की बुक को पढ़ के ये नए आइडियाज जो है वो अपने माइंड में लेकर आए और इस तरह से काफी हद तक डायनेस्टिक सिस्टम यानी कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम को अपोज किया। तो ये भी एक रीजन माना जाता है कि इन बुक्स को पढ़कर बहुत से लोगों ने जो है अपोज किया। देन नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू रोट स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ जो है उसकी क्या स्पिरिट होती है, एक लॉ जो है उसकी क्या पावर होती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी, उन्होंने क्या कहा कि पावर जो है वो सिर्फ किंग के पास नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड और इट शुड नॉट बी इन अ सिंगल हैंड, इट शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक, पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स। और मॉन्टेस्क्यू ने क्या सजेस्ट किया, पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, then executive and judiciary। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या सजेस्ट किया, लेजिस्लेचर यानी कि एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जिसका काम सिर्फ लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जिसका काम लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करना हो। और जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जिसका काम जो लोग लॉज को ब्रेक करते हैं या इन लॉज को इंटरप्रेट करना, जिनको लॉ समझ नहीं आते उनको एक्सप्लेन करना, एंड जो लोग लॉ ब्रेक करते हैं उनको पनिश करना, रिगार्डिंग जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल का मतलब होता है लाइक जुडिशरी से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मॉन्टेस्क्यू यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉज ऐसी बुक थी जिससे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि इन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग पावर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। लाइक इन इंडिया दिस सिस्टम इज देयर, हमारी कंट्री में ये सिस्टम है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि हमारी कंट्री में आज भी हम इन स्पिरिट ऑफ लॉज या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखे गए जो बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये सिस्टम बहुत जो है वो फेमस हुआ जब लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा एंड दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल, अगेंस्ट लुई 16 आल्सो। देन इसके अलावा एक और फिलोसोफर माने गए हैं वोल्टायर। He wrote many pamphlets, many articles to oppose the interference of church, to oppose church. So that is not a kind of book. ये सारी बुक्स हैं लेकिन वोल्टायर की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। इस बुक में उन्होंने क्या लिखा, दैट चर्च की जो है फर्स्ट स्टेट की जो इंटरफेरेंस है उसको काफी हद तक कम किया जाए ताकि लोगों को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मिक्स ना किया जाए। तो वोल्टेयर का ये मानना था कि किंग की एडमिनिस्ट्रेशन या किंग की जो गवर्नमेंट है उसमें चर्च जो है, ठीक है, उसकी जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से फिलोसफर्स ने अपने आइडियाज जो हैं वो उस टाइम पीरियड में शेयर किए थ्रू बुक्स, एंड बाय रीडिंग दीज आइडियाज मैनी पीपल दे स्टार्टेड रिवोल्ट और दे ब्रॉट रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन द सोसाइटी। सो दिस ये जो है ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का फोर्थ कॉज माना जाता है, रोल ऑफ फिलोसफी। इससे पहले बच्चे मैंने डिस्कस किया आपके साथ पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस, एंड देन जो फोर्थ है दैट इज रोल ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, हाँ जी, यस धैर्य, कीप योर माइक ऑन। यस धैर्य। मैम वीडियो अड़ रही है मैम, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा। हाँ जी, मैम नेटवर्क इशू है मैम आपकी तरफ से, तो मैम वीडियो क्लियर भी नहीं है और कुछ नहीं समझ आ रहा। नाउ इट इज ओके। यस नाउ इट इज ओके बेटा, वॉइस इज क्लियर, ऑडिबल है वॉइस। मैम बीच बीच में रुक रुक के आ रही है ना, इसलिए। Okay, whatever I have discussed in the class, it is clear to you. Role of philosopher, the name of writers and their books. This is clear to you. Dharya, it is clear. नो मैम।
Again, I should repeat. Should I repeat again? Yes, ma'am. Okay, I will repeat. Don't Yes, ma'am. Yes. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है बच्चे, इसमें फोर्थ जो कॉज है वो मेन माना जाता है रोल ऑफ फिलोसोफर्स. एंड इसमें बच्चे आपने क्या बताना है, दैट डिफरेंट फिलोसोफर्स दे रोट मैनी बुक्स. लाइक जॉन लॉक, ही रोट 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. आपने बच्चे हर बुक का एक एक आइडिया बताना है. जॉन लॉक ने क्या किया? यस, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. इसमें हमने मेन बताना है दैट जॉन लॉक ही अपोज द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. यानी कि जो किंग है, ठीक है, उसके कहा गया हर वर्ड गॉड का वर्ड नहीं हो सकता. तो जॉन लॉक ने इस जो बुक है, उस बुक को अब जो है अपने आइडियाज को शेयर किया कि लोगों को किंग के जो है वो रॉन्ग पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर उसको अपोज करना है. देन रूसो ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट होती है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द लीडर्स. यानी कि जो लोग हैं वो इलेक्शन सिस्टम के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट या एक बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, और 5 ईयर्स के लिए या 6 ईयर्स के लिए या इलेक्शंस का टाइम पीरियड जितना भी होता है उसमें वो लीडर्स को वॉच करते हैं ताकि ये लीडर्स लोगों के लिए बेस्ट पॉलिसीज बनाए. देन मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ लॉज. मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा दैट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन शुड बी देयर. पावर्स, इससे पहले पावर सिर्फ किंग के हाथ में, ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन शुड बी देयर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लॉ बनाना होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम जो है वो पनिश. जैसे हमारी कंट्री में क्या है, अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो चीफ, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफरेंट मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. एंड वोल्टायर, एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर जो थे, उन्होंने अपोज किया चर्च की इंटरफेरेंस. उन्होंने ये कहा कि जो चर्च की इंटरफेरेंस जो है वो पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं होनी चाहिए. चर्च सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट्स में ही जो है वो इंटरफेयर करे. पॉलिटिकल मैटर जो होते हैं उसमें चर्च की इंटरफेरेंस उन्होंने काफी हद तक जो है वो अपोज किया. नाउ इट इज ओके धैर्य? धैर्य, इट इज ओके नाउ? इट इज ऑडिबल? यस मैम. यस मैम, एक बारी स्पिरिट हाउस वाला बताना, उस पे वॉइस नहीं आई थी, बस स्पिरिट हाउस वाला. which point? मैम स्पिरिट हाउस. Spirit of laws. Spirit of laws you want to explain? यस मैम, यस मैम. Spirit of laws बच्चे एक बुक का नेम था. This book was written by Montesquieu, and in this book different organs were suggested by Montesquieu. Organs का मतलब होता है अलग-अलग जो है वो गवर्नमेंट के वर्क इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. तो लेजिस्लेचर में आता है लोकसभा एंड राज्यसभा. सपोज अगर मैं अपनी कंट्री की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा. लोकसभा राज्यसभा लॉज बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट. एंड जुडिशरी जो है उसका काम क्या होता है? पनिश करना, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे गए हैं उनको इंटरप्रेट करना. तो मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा था कि पावर या जो लॉज हैं, ठीक है, इनको बनाने वाले अलग होने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने वाले अलग होने चाहिए, एंड लॉ जो ब्रेक करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए अलग होने चाहिए. लेकिन इससे पहले फ्रांस में ऐसा नहीं था. किंग ही लेजिस्लेटिव था, किंग ही एग्जीक्यूटिव था, और किंग ही जुडिशरी जो है कंट्रोल करता था. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग जो नए आइडियाज हमारी कंट्री में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में इसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है. तो ये सारे कंट्रीब्यूशन है रोल ऑफ फिलोसफर्स का माना जाता है. कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉज बना फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट बेटा, जो नेक्स्ट कॉज यानी कि जो फिफ्थ कॉज है दैट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस. ये एक फिफ्थ कॉज बना फ्रेंच रेवोल्यूशन. सबसिस्टेंस क्राइसिस, फिफ्थ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसमें हमने ये बताना है सबसिस्टेंस यानी कि वो टाइम 1789 से पहले का टाइम पीरियड व्हेन पीपल दे वर नॉट गेटिंग बेसिक फैसिलिटीज. बेसिक फैसिलिटीज कौन सी होती हैं? लाइक फूड, क्लोथिंग,
एंड शेल्टर। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है that people they were not getting these basic facilities। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जब लोगों को जीने के लिए चीजें नहीं मिलती हैं, ना फूड मिल रहा था, ना प्रॉपर क्लोथिंग थी, ना शेल्टर था, प्राइसेस वर वेरी हाई। ठीक है, ये सारे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी आप इसमें लिख सकते हो। एंड स्टेपल डाइट, उस टाइम पीरियड में स्टेपल डाइट जो थी फ्रांस के लोगों की क्या थी, ब्रेड। तो राइज ऑफ ब्रेड, प्राइस जो था उसका ब्रेड का, दैट वाज आल्सो वेरी हाई। ठीक है, और जब जिस टाइम पीरियड में मार्केट में चीजों के जो है प्राइसेस बहुत हाई थे, तो फूड शॉर्टेज अकर। फूड शॉर्टेज का मतलब क्या होता है कि पीपल दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, और अगर था भी तो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। ठीक है, फूड शॉर्टेज आप इसमें लिख सकते हो, फूड शॉर्टेज वाज देयर। एंड स्टारवेशन, और जब बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं तो लोग क्या होते हैं, वो दे डाइड ऑफ स्टारवेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है जब लोगों को जीने के लिए चीजें नहीं मिलती हैं, चीजों के रेट बहुत ज्यादा थे। ठीक है, जो प्राइस जो वहाँ की स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड जो है ब्रेड, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई। शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज वाज ऑलरेडी देयर एंड पीपल दे वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दीज सर्कमस्टांसेस मेनी पीपल दे अटैक ऑन डिफरेंट मार्केट शॉप्स, ब्रेड शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, और ये रीजन बना रेवोल्यूशन, बिकॉज पीपल दे वर नॉट गेटिंग बेसिक फैसिलिटीज। तो ये आपने एंड में बताना है। कुछ इकोनॉमिक कॉजेज को भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टोटल 5 कॉजेज आई हैव एक्सप्लेन विद यू। नंबर 1 पॉलिटिकल कॉज, नंबर 2 सोशल कॉज, नंबर 3 इकोनॉमिक कॉज, नंबर 4 रोल ऑफ फिलोसोफर्स, एंड नंबर 5 सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो आपने जितने भी ये पॉइंट हैं इनको आगे एक्सप्लेन करना है इनटू 3-4 पॉइंट्स, बिकॉज आपका जो मेन क्वेश्चन है दैट इज कॉजेज, एंड ऑल दीज पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी आगे क्वेश्चन फॉर्म में आपको आ सकते हैं, तो आपने इनको भी अलग से प्रिपेयर करना है। तो आपको किसी भी तरह से 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन जो है ये पूरे टॉपिक से, ठीक है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चे, so that was all about the causes of French Revolution। इसके बाद टाइम पीरियड मैंने आपको हमेशा बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था, 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो अभी मैंने जो भी कॉजेज बताए हैं वो इससे पहले का टाइम पीरियड। ठीक है, कि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट कैसा था, या इकोनॉमिक रीजन क्या थे, या फिलोसफर्स ने बुक्स लिखी, और इससे पहले का टाइम पीरियड। ठीक है, इससे पहले का टाइम पीरियड मतलब कि जो है वो रेवोल्यूशन के पहले का टाइम पीरियड। अब इसी रेवोल्यूशन के पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले एक और इवेंट आपने पढ़नी है, मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। ये भी इससे पहले, और इसकी इंपॉर्टेंट डेट कौन सी थी, 5 मई 1789। 5 मई 1789 यानी कि रेवोल्यूशन से पहले का टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि हमने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो हमें उसकी बैकग्राउंड, हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो जुलाई से पहले यानी कि 5 मई 1789 मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल अकर। अब हमने इस मीटिंग के बारे में सारा जो है वो जानना है कि मीटिंग क्या थी और इसका एजेंडा क्या था। ठीक है, तो इन शॉर्ट यू हैव टू राइट अ नोट ऑन मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। तो मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, मीटिंग जो है ये थी स्टेट जनरल के बीच में। स्टेट जनरल का मतलब क्या होता है, सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल स्टेट, कितनी स्टेट्स थी, स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3। जनरल, जनरल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्यों मीटिंग बुलाई, यानी कि 5 मई 1789 को लुई 16 ने पैलेस ऑफ वर्साइल, जो उनका मेन पैलेस था, वहां पे मीटिंग क्यों बुलाई, रीजन क्या था। द रीजन ऑफ दिस मीटिंग वाज टू लेवी न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस को लगाना। ऑलरेडी सोसाइटी में इतना बर्डन था और ऊपर से नए टैक्स लगाना, तो ये जो था उस टाइम पे में फ्रेंच जो पीपल थे तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। और इससे पहले
आपको पता होना चाहिए कि जब भी फ्रांस में जो किंग थे वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस या नए टैक्स लगाते थे तो प्रॉपर उनको मीटिंग करनी पड़ती थी। और इससे पहले लास्ट मीटिंग लुई 16 के फोर फादर्स ने कब बुलाई थी? 1614, यानी कि 1614 के बाद कोई मीटिंग बुलाई ही नहीं थी। तो इस बार किंग की ट्रेजरी वैसे ही एम्प्टी थी, तो किंग को फाइनेंस चाहिए था, तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड अ मीटिंग। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग का एजेंडा क्या था? टू लेवी न्यू टैक्सेस। अब इस मीटिंग को बुलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो सिलेक्ट किए गए। फर्स्ट स्टेट 300, सेकेंड स्टेट 300 एंड थर्ड स्टेट 600, यानी कि सिर्फ 300 लोग आएंगे फर्स्ट स्टेट से और 300 आएंगे सेकंड से और 600, क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी तो दैट वाज डिसाइडेड कि थर्ड स्टेट के सिर्फ 600 रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे। तो टोटल ये 600 प्लस 300 प्लस 300, दीज पीपल वर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट स्टेट्स and they all were called in the palace of Versailles. A meeting hall was decorated, पूरा मीटिंग हॉल डेकोरेट किया गया। लुई 16 जो थे वो मेन उनके होस्ट थे जिन्होंने मीटिंग को होस्ट करना था। एंड प्रपोजल जो था, नए टैक्स लगाने का प्रपोजल, यानी कि कौन कौन से टैक्स लगाए थे, चाहे जैसे भी टैक्स लगाए जाए अल्टीमेटली बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही था। ठीक है, तो इस स्टेट सिस्टम का वोटिंग क्राइटेरिया था। वोटिंग का मतलब होता है कि हर स्टेट का वन vote of first, one vote of second and one vote of third। सिर्फ वोटिंग सिस्टम क्या था कि स्टेट सिस्टम का, यानी कि पूरे 300 पीपल जो है उनका एक सिंगल वोट माना जाए। सेकेंड स्टेट के अगर 300 पीपल है तो उनका भी एक वन वोट माना जाए, और अगर 600 है तो उनका भी सिंगल वोट माना जाए। But this time people they came with their new ideas. These people they wanted to change the system. वो चाहते थे कि थर्ड स्टेट के अगर 600 हैं तो हर पर्सन का सिंगल वोट होना चाहिए। इट मींस these people they wanted to change this system. वो चाहते थे कि थर्ड स्टेट यानी कि अगर 600 हैं तो सभी जितने भी 600 हैं उनका सिंगल वोट हो। ईच पर्सन शुड हैव गिवन राइट टू वोट। वोट का मतलब होता है प्रपोजल को रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना। लेकिन किंग ही वाज नॉट रेडी विद दिस चेंज। किंग को लगता था कि अगर लोगों को वोटिंग राइट दे दिया गया या लोगों को ये प्रपोजल दे दिया गया तो लोग जो है वो अपोज कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम इसमें बताएंगे कि किंग ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। उसने वोटिंग क्राइटेरिया को चेंज करने से मना। और 600 जो रिप्रेजेंटेटिव से अपने साथ बहुत सी लेटर्स, एप्लीकेशंस या प्रॉब्लम्स लेकर आए थे। उनको लगा था कि किंग जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करेंगे या डिस्कस करेंगे, वो अपने लोगों को प्रॉब्लम्स बताएंगे किंग को कि उनको किस तरह से टैक्सेस की प्रॉब्लम आ रही। बट किंग ही नेवर लिसन, उन्होंने कभी इन प्रॉब्लम्स को सुना ही नहीं। एंड दूसरा, उसे वोटिंग सिस्टम जो है वो चेंज करने के लिए प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और जब प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया देन दीज 600 पीपल they came out without the permission of king। वो किंग की परमिशन के बिना असेंबली से बाहर आ। That was a major, you can say, big insult to the king इस टाइम पर में, किंग की इंसल्ट। तो फर्स्ट टाइम फ्रेंच हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जब लोगों ने किंग की परमिशन के बिना जो है वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब क्या होता है? असेंबली से बाहर। तो दिस वाज अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कि ये 5 मई 1789 को ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी बाय द डिफरेंट स्टेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया 300 from। एंड और क्या प्रॉब्लम थी? दैट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर गिवन चेयर्स, यानी कि इनको चेयर्स मिली। एंड थर्ड स्टेट दे वर नॉट गिवन चेयर्स, दे हैड टू स्टैंड बैक। ठीक है, उनको बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। तो दैट वाज आल्सो एन इंसल्ट ऑफ दीस थर्ड स्टेट। चाहे वो कॉमन पीपल थे बट दे वर नॉट प्रोवाइडेड चेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर में सोसाइटी में था। एंड इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। किंग ने जो है प्रपोजल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, जो वोटिंग सिस्टम का क्राइटेरिया था। और बिना किसी टैक्स जो है या बिना किसी नए टैक्स के जो है वो कंबाइन उनके रिजल्ट के, ये जो 600 लोग थे ये किंग की परमिशन के बिना बाहर आ। और इस तरह से काफी हद तक जो किंग का मेन मोटिव था मीटिंग को बुलाने का वो सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, और मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल के बाद फिर नेक्स्ट, यानी कि हमने इसमें बताना है कि जो 600 लोग थे, ये पैलेस ऑफ वर्साई के सामने बेटा एक टेनिस कोर्ट था। ठीक है, टेनिस कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेला जाता था
एंड ये लोग वहां पे आकर जो है वो इकट्ठे हुए, and they declared themselves as National Assembly. नेशनल असेंबली का मतलब क्या है कि उनको अब ये लगा कि किंग अगर उनके प्रपोजल्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो उनको खुद अपने लिए लॉ बनाना चाहिए। और फर्स्ट टाइम लोगों ने क्या किया, यानी कि 5 मई 1789 जिस टाइम मीटिंग हुई, और उसके बाद वो पैलेस ऑफ वर्साई के बाहर एक टेनिस कोर्ट, एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड में बैठ गए एंड दे डिक्लेयर देमसेल्व एज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब है कि एक ग्रुप बना लिया, एक एसोसिएशन बनाई कि वी आर द पीपल, वी विल मेक आवर लॉ, मतलब जो है अपने लॉ जो है खुद बनाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे वहां पर लोग हर रोज आते थे और नए नए, जैसे हम कहते हैं कि कंट्री में क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, उनके लिए सजेशंस देते थे। और जब किंग को इनके बारे में पता लगा तो किंग ने काफी हद तक जो है इनको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। बट पीपल दे वर नॉट लिसनिंग, दिस टाइम दे वांटेड अ बिग चेंज, वो चेंज चाहते थे सोसाइटी। एंड दिस मीटिंग वाज, you can say, the also the you can say starting of the revolutionary ideas of the people. Is it clear?